morning and welcome to revision class. We have already completed the first chapter, that is units and measurements. In this regard, we have discussed dimension to error analysis, significant figures, as well as the fundamental units, derived unit, etc. Today we will discuss the motion in one dimension. Motion in one dimension means in general what we call motion in a straight line. When we discuss motion in a straight line, then first of all we have to discuss certain smaller thing with which you are well aware of. I am just revising all those names like speed, displacement, distance, velocity, acceleration, etc. In today's lecture. Okay, let us start with distance. As you observe, distance is the length of the actual path traveled by a body in its initial and final position. Okay. Now it is the length of the actual path traveled by a body from its initial and final position, or between its initial and final position. It is rather better to write between its initial and final position. You can see the diagram over here. A person is moving, running, whatever you can assume from the diagram. It is a straight line, definitely it is straight line motion. Its initial position is A and final position is B. He can also do the same way if some third position is C. He is going from his home to his friend's home and finally to his destination. Suppose A is the school and A is the position of home and B is the position of school. He initially moves to a friend's house and then he returns back, then he goes to the school. Okay. If this is the route, then this is the distance traveled in first part, this is distance traveled in second part. Then the entire path, it is the length of the actual path traveled by a body between its initial and final position. तो इससे क्या दिखता है? S is equal to AC plus CB. AC plus CB. Okay. अगर ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ध्यान दीजिएगा, ये अलग अलग नहीं है, टू डायमेंशनल मोशन नहीं है, एक ही डायमेंशन का है, ये एट ए टाइम वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है. तो दैट मीन्स इनिशियली क्या है, ए से बी सी की ओर जा रहा है, देन सी टू बी. दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द मोशन वी कॉल AC plus CB. Okay, it is a scalar quantity naturally and its unit is m. Unit क्या है? मीटर. Unit is meter or centimeter. You can kilometer, anything you can take as this length or distance traveled. Then is displacement. Okay, as the name itself is, it is very similar to this. DIS is common. Next is displacement is different here. TA and secants. These are two different things. Rest of the things that are this DIS, they are common in between distance and displacement. Displacement जैसे नाम से मतलब प्लेसमेंट कहीं ना कहीं आ रहा है, यानी कि उसका प्लेसमेंट बदल रहा है, पोजीशन बदल रहा है एक जगह से दूसरी जगह. यहाँ पे क्या लगा है? इट इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट in a fixed direction. It is the shortest path in the direction from initial point to the final point. It is the change in position of an object in a fixed direction. ध्यान देना, अगर ये फिक्स डायरेक्शन जैसे ये चल रहा है तो A to B, अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो A B आपका डिस्प्लेसमेंट भी होगा इस पाथ में, इस डायग्राम में. इस डायग्राम की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट AC B ऐसा नहीं होगा. डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली A to B. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो डिस्टेंस क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है, उसका यूनिट मीटर होता है, इसका यूनिट भी मीटर होता है, बट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. मीन इट इज अ डायरेक्शनल थिंग विच हैज सम डायरेक्शन. ये इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच का डायरेक्शन की बात है. अब देखिए, अगर आपने क्या किया, एक धागे में आपने एक धागे से एक पत्थर बांध के गोल गोल घुमाया, तो इसका मतलब क्या है कि इन वन कंप्लीट राउंड द डिस्टेंस ट्रेवल इज 2 पाई r. अगर r उसका रेडियस है
लेकिन अगर आप उसका डिस्प्लेसमेंट देखें तो जहां से चलता है वो एक चक्कर के बाद वहीं वापस आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0, जबकि इतना टाइम लगा उस घूमने में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका 0 है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, 0 नहीं है। डिस्टेंस है समथिंग, डिस्टेंस इज योर नेट डिस्टेंस, इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक भी है तो भी 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो उस समय उसका डिस्टेंस काउंट हो गया, और ये होगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी के बाद हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन। ओके, लेट अस टेक स्पीड एंड नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग स्पीड। स्पीड जैसे क्या, कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी चल रहा है, मूव कर रहा है किसी एक रूट पे, तो उसमें क्या हो जाएगा कि वो एक टाइम के अंदर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। हम लोग स्कूटर चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो हम लोग देखते रहते हैं, बीच में स्पीडोमीटर रीडिंग देता है, तो उसमें क्या देता है, किलोमीटर पर आवर, तो इसी को आप मीटर पर सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं, तो वो एक स्पीड है। तो स्पीड क्या है, इट इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल एंड टाइम टेकन इज कॉल्ड स्पीड। इट इज द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल एंड टाइम टेकन, ये कोई डायरेक्शन का मामला नहीं है, जब इट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। एक बार आपको फिर बता दें, स्केलर, वेक्टर, ये सब जो मैं बार बार बता रहा हूँ, तो इसमें क्या है कि वेक्टर एक ऐसा क्वांटिटी है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है विच कैन हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। लेकिन जब स्केलर कहते हैं तो स्केलर का मतलब इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, यूनिट तो होगा ही, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। तो इसमें डायरेक्शन जब स्पेसिफाई नहीं करता, जैसे कि ईस्ट 4 मीटर पर सेकंड ईस्ट, 4 मीटर पर सेकंड नॉर्थ ईस्ट, 45 फ्रॉम एंगल फ्रॉम ईस्ट, ऐसा बता दे तो अलग चीज, वो एक डायरेक्शनल हो गया। जब डायरेक्शन नहीं होता है तो उसको हम लोग कहते हैं एक स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए एक कांस्टेंट रेट से चल रहा है, हर 10 सेकंड में वो 1 मीटर चलता है, या आपका 2 मीटर चलता है। जैसे अभी मान लीजिए कि 0 टाइम से चलना स्टार्ट किया तो 10 सेकंड के बाद वो 1 मीटर चल जाता है। अगले 1 सेकंड में यानी कि 2 सेकंड जब होगा उसमें वो 2 मीटर चल जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसका रेट कांस्टेंट है, उसको हम उसको कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड तो हो गया। तो अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर टाइम में स्पीड चाहिए, जैसे हम लोग स्कूटर में, आप मोटरसाइकिल में बैठे हो, किसी आपके साथ कोई बैठा है, आप तो खाली सामने को देखकर आप चला रहे हो, रोड देखकर चला रहे हो, बट इफ समवन देयर हु इज also riding with you is he is sitting, then he may ask, अभी इस समय स्पीड क्या जरा बताइए, जस्ट टेल मी व्हाट इज द स्पीड एट दिस टाइम। तो आप स्पीडोमीटर देखेंगे, इस समय हम लोग 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे हैं। तो उस समय जो आप रीडिंग बोलेंगे, व्हेन यू कॉल दैट यस आई एम ड्राइविंग विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, तो वो जो होता है उस समय जो स्पीडोमीटर बताता है, आप जो बोल रहे हैं दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। इसको मैथमेटिकली कैसे दिखाते हैं, डेल्टा एक्स तो जो नेट डिस्टेंस है अपॉन डेल्टा टाइम, वो टाइम इंटरवल को कहते हैं। लेकिन अगर टाइम इंटरवल को बहुत ही छोटा मान के चले, बहुत ही कम उसमें, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ऐसे लिखते हैं, एरो बनाकर 0 लिख के लिखते हैं। तो उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, तो dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt क्या है, दिस इज कॉल्ड योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, बिल्कुल सिमिलर चीज है, ध्यान दीजिएगा। अगर हमको ये चीज जानना होगा कि मेरा ट्रैवल कर रहा हूँ, तो स्पीड के समय क्या डायरेक्शन हम लोग देखते नहीं है, तो उस समय क्या करें, नेट डिस्टेंस से देखते हैं। तो अगर मुझे एवरेज स्पीड चाहिए, जैसे कभी मैं 30 के स्पीड में चला रहा हूँ, 10 सेकंड में 30 के स्पीड में चला रहा हूँ, अगले 10 सेकंड में 40 के स्पीड में चला रहा हूँ, फिर 45 के स्पीड में चला रहा हूँ, ऐसे अगर मैं टोटल डिस्टेंस अगर हमको मालूम है, मैंने इतने डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो उस समय के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हम लोग हर एक टाइम इंटरवल में डिस्टेंस निकाल लेंगे, उनको सम निकाल के टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम इज कॉल्ड एज एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड आ गया। तो ये सब चीज स्केलर क्वांटिटी में आ गया। अब बिल्कुल सिमिलर चीज है वेलोसिटी में, इसलिए अलग से इसको देखिए, छोटे छोटे लिखा हुआ है वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with time is
in a given direction is called its velocity. The rate of change of position, तो पोजीशन बदलने से क्या हो जाएगा कि आपका वो एक डिस्प्लेसमेंट तैयार होता है. तो इसके मतलब क्या है कि वेलोसिटी इज द रेशियो बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम टेकन. ओके, इट इज जस्ट लाइक डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन. यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. दिस इज द वेरी आइडेंटिकल थिंग. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज स्केलर एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. मतलब इसका डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है. इसमें केवल डायरेक्शन था, इसमें केवल मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन नहीं था. लेकिन यहाँ पर क्या, इट हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड बोथ. तो इसी तरह से अगर हम ये कहेंगे ठीक है मैं इसमें स्पीड से जा रहा हूँ, तो भाई हमारा अगर एवरेज स्पीड जैसे निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी निकालें, तो एवरेज वेलोसिटी में क्या हम लोग ये कहेंगे कि जो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम? नहीं, ऐसा नहीं है. हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज टाइम, तो चूंकि फिक्स क्वांटिटी है तो टाइम में कोई चेंज, टाइम तो टोटल टाइम ही लेंगे हम लोग. फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन में इस समय 5:05, तो उसके 5:15 में कहीं जाता हूँ, तो हम लोग को जो 10 मिनट का जो टाइम है तो दैट इज टोटल टाइम, उसमें तो कोई डाउट नहीं. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बट हाउ वी राइट एवरेज वेलोसिटी इक्वल नेट डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. ओके, दैट वी कॉल एज x2 minus x1 अपॉन t2 minus t1. t2 minus t1 तो जरूरी है क्योंकि मैंने जैसे कहा कि इसमें 5:10 और 5:25 में या 20 मिनट में हम निकालना चाहेंगे तो दो डिफरेंस होगा. 5:05 स्टार्टिंग में था, फिर 5:15 था, तो 10 मिनट का डिफरेंस हुआ. दैट इज t2 minus t1. लेकिन ये पोजीशन जो था पहले हम लोग इस समय स्पीड से हम लोग मालूम नहीं है, लेकिन डिस्टेंस मुझे मालूम है. पहले 5 सेकंड में मैं कहाँ गया था, कहाँ से मैंने स्टार्ट किया और उस समय कितना डिस्टेंस था और फाइनली उस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस और गए, उनके जो डिफरेंस होगा दैट वी कॉल एज द नेट डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्प्लेसमेंट. तो एवरेज वेलोसिटी भी आ गया, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, नो डाउट. जब एवरेज स्पीड आ गया, एवरेज वेलोसिटी आ गया, तो नेक्स्ट हम लोग ये जरूर देखेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर मैं बात करूं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी यही है कि अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं और मान लीजिए बिल्कुल रोड खाली है, कहीं पर भी कुछ भी ऑब्स्टिकल नहीं है, मैं बिल्कुल एक्सीलरेटर फिक्स रखा हूं, एक्सीलरेटर चेंज ही नहीं कर रहा हूं, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूं, कम से कम 10-15 मिनट चलेंगे. तो उस ड्यूरेशन को जब मैं कहूँगा, अगर मेरा वेलोसिटी कह देंगे टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन में क्या है, दैट इज जस्ट 60 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इट इज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. जस्ट लाइक यूनिफॉर्म स्पीड, यहाँ पर भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होता. यूनिफॉर्म स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन इसमें एक डायरेक्शन होना जरूरी है. ठीक है. अच्छा, अब एक्सीलरेशन की बात है. अब वेलोसिटी कुछ ऐसे हो, एक डायरेक्शन में चल, लेकिन लगातार आप एक्सीलरेटर बढ़ाते जा रहे हो, लगातार आप वेलोसिटी बढ़ाते जा रहे हो, एंड रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीज्ड विद द टाइम इंटरवल. तो अब उस समय क्या कि आप वेलोसिटी को हर सेकंड में, हर एक यूनिट टाइम में चेंज करते जा रहे हो, इंक्रीज करते जा रहे हो. तो उस समय आपके मोशन को क्या कहेंगे, एक्सेलरेटिंग मोशन. और तो एक फिजिकल टर्म वहां से क्या डेवलप हुआ, एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन क्या है, इट इज द रेट ऑफ displacement with time. What I have written, rate of change in velocity, rate of change in velocity of an object with time is called acceleration. Rate of change in velocity, rate of change in velocity, ध्यान देना. rate of displacement कह देंगे तो velocity आएगा, तो ये डबल रेट हो गया. rate of change in velocity जो है वो आपका acceleration है, और rate of change of position is your velocity. तो जब हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. द बॉडी इज सेट टू एक्सेलरेट. जब मैं लगातार स्पीड बढ़ाते जा रहा हूँ एक्सेलरेटर से, तो उस समय क्या हो रहा है कि हमको मालूम है कि हमारा स्पीड एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है. तो वो जो बढ़ रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे कि a इक्वल टू v2 minus v1 अपॉन t2 minus t1. This is called the acceleration, and its unit is meter per second square. Unit is meter per second square. Unlike the unit of this, now its unit is velocity. Unit of velocity
is meter per second only, and here per second square means velocity upon time. That is why meter per second upon second, that means meter per second square. Okay, and you can see that if a person is now moving to the crowd, naturally every time with the same constant speed he has to decrease the speed. तो जब वो लगातार स्पीड कम करते जाएंगे तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम लोग कहेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन, और व्हाट वी कॉल द रिटार्डेशन. उस समय को हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन. जैसे यहाँ पर v2 माइनस v1 है, अगर v2 का वैल्यू v1 से छोटा होता जाए तब क्या लिखेंगे, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1. वट एवर क्वान्टिटी वी गेट, दैट इज आवर रिटार्डेशन इफ v2 इज लेस देन v1. लेकिन अगर उल्टा हो, v2 लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उस समय हम लोग कहेंगे एक्सेलरेशन. So this is how we have taken acceleration, retardation, speed, velocity, etc. In the next lecture, we will discuss something about the graphs, different graphs, and their calculations. Okay. With that, I think we have understood the basics of the chapter. Next, we will discuss the details, mathematical details of the chapter. Thank you.